hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. सो हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि आप लोग इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू हाउ टू क्रैक दी एपीज एग्जामिनेशन, इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो अभी थोड़ी सी फुर्सत मिली है एंड आज मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर राममूर्ति सर को, जो कि अभी मेरे चैम्बर के सीनियर हैं, सीनियर मोस्ट, एंड ही इज़ करेंटली होल्डिंग द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। एंड इनसे कुछ जानेंगे कि सर की क्या जर्नी रही यहाँ तक पहुँचने में, एंड इनका वर्क एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ रहा, कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो सर, आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को, हमारे दर्शकों को, कि आपका ये शॉर्ट हैंड का जर्नी कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, शुरुआत से अगर हम बात करें तो। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर trying to know about myself, and I would like to share my experience about the shorthand. Yes sir. When I was graduating from Kanpur University, my father inspired me to learn this shorthand. Earlier I was not aware about the scope in the shorthand, but when I joined the institute providing such instructions, I found that it is a very good field in which career can be made. Not very easily, but can be made after doing hard work. डेफिनेटली सर। तो सर आप कुछ बताएं कि मैंने सुना है कि आपने इसके पहले भी किसी हाई कोर्ट में आपने। Yes, I have worked at high court at Nainital. Okay sir. And this high court was also situated at a very peaceful area. Uttarakhand is known for the beauty and peace, and I think that there was also a good atmosphere when I joined the institution. So that was your first job? Everyone was cooperative to me. That was your first job? Yes, that was my first job. Okay. तो मतलब you did not serve in any of the central services like people? No, when I graduated, I completed my graduation. Thereafter I appeared 2-3 examinations. SSC? No, for only high court examinations. मतलब you were specific that? Yes. I appeared for the examination of PA at Honorable High Court at Allahabad, Okay. Honorable High Court at Patna, Honorable High Court at Delhi, and lastly I cleared examinations in both the high courts. At Honorable High Court at Nainital and Honorable High Court at Allahabad. Okay, that's wonderful. So sir, what was your motivation behind this? Is there any specific personality that motivated you to come join this high court? And the motivation I derived from my shorthand instructor. Okay. His name is Sri Rajesh Sharma. I joined the institute, and he guided me in this field. And he told me that honorable high courts are very good places. Though there is little more work pressure. But the actual work of the shorthand, if you like shorthand, the actual work of the shorthand will you do at the honorable because I have few friends from the central services. I hear them saying that they hardly use their shorthand, but in high court we must use shorthand on day-to-day basis in extreme way.
तो अब मैं जा रहा हूँ पूल में। पूल एक हमारा पीए सेक्शन है जहाँ पे जो सेक्रेटरीज अटैच नहीं रहते हैं, जिनके लॉर्डशिप जो पहले अटैच कहीं रहते होंगे, उनके लॉर्डशिप रिटायर हो जाते हैं, तो वो टेम्परेली इस पूल में आके काम करता है। तो यहाँ पे देखते हैं जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। और लेटेस्ट बैच के मैक्सिमम सेक्रेटरीज इसी पूल में हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करते हैं, जानते हैं कि कुछ लाइट अगर वो दे सके रिगार्डिंग हाउ टू क्लियर द एपीएस एग्जामिनेशन। तो लेट्स टॉक टू देम। तो इंटरव्यू के सीक्वेंस में अब हम हैं गुरप्रीत जी के साथ, जो अभी इस लेटेस्ट बैच के एपीएस हैं। तो ये हम गुरप्रीत जी से पूछना चाहेंगे कि सिलेबस क्या रहा इस बार, क्योंकि इस बार हमारे टाइम पे तो सिलेबस दूसरा था, इस बार सिलेबस कुछ चेंज हुआ था। तो सिलेबस के बारे में गुरप्रीत जी कुछ हमें बताएंगे। और दूसरा एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा, गुरप्रीत जी ने आरओ का भी एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ, बट उन्होंने एपीएस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया एंड एपीएस में ज्वाइन किया। तो गुरप्रीत जी क्या सिलेबस रहा इसका, क्या सिलेबस था एपीएस एग्जामिनेशन का? इस बार का जो यूपीएस का एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो काफ़ी हद तक आर से मिलता जुलता है। तो बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, 150 कर दिए गए, और लगभग पैटर्न जो है वो आर का ही इसमें बनाया गया। अच्छा, प्री का जो प्री का जो है वो सेम रखा गया, और सेम डे पर ही आपका रिटन हुआ था, सेम डे पर ही आपका जो बुक का कंटेंट आता है वो भी था, और सेम डे पर ही आपकी फॉर्मेटिंग भी थी। अच्छा, सेम डे ये तीनों चीज़ें सेम डे पर हुई थी, 15-15 मिनट के ब्रेक पर। ओके। और सेकेंडरी स्टेज जो था वो आपका शॉर्ट एंड स्किल था, वो तो अलग डे पे हुआ। वो अलग डे पे था। ओके। तो प्री में जो ऐसा आपका जानती हैं, जैसा सेम आर पैटर्न पे जीएस होता है, जीएस में सब कुछ ही आता है, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका कंप्यूटर भी आता है, उसमें इंग्लिश भी आता है, तो सब कुछ आता है थोड़ा थोड़ा। उसके नंबर ऑफ डिवीजन बचे हुए हैं, डिवीजन में बटे हुए हैं, जैसे 7 क्वेश्चन उसके, 10 क्वेश्चन उसके, इस तरह से डिवीजन्स अलग अलग डिवीजन्स आते हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं था। इस बार बहुत ज़्यादा पैटर्न में उन्होंने वेरिएशन किया। पहले फिक्स पैटर्न था 30-30-30, तीन ही चीज़ें आती थी 30-30 के उसमें, जबकि इस बार उसको टोटली उन्होंने चेंज कर दिया था। तो अभी जो लेटेस्ट आ रहा है, तो लेटेस्ट वालों को इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मतलब जो जनरल एग्जामिनेशन की जैसे तैयारी होती है उस पर अगर उस पर ध्यान देना चाहिए। इवन रिटन में उन्होंने हालांकि बहुत अच्छा उन्होंने उसको अलग अलग बांटा हुआ है, तो अगर डिवीजन्स पर वो लोग ध्यान देंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सेक्शन को अगर आप लोग इंडिविजुअल पढ़ें तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा। और करंट अफेयर्स है या मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सेक्शन जो उन्होंने वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे नेशनल कांग्रेस है या नेशनल मूवमेंट्स हैं, तो उनको आप इंडिविजुअल पढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ओके। तो काफ़ी फायदेमंद है। गुरप्रीत जी, आपकी रैंक क्या थी, हम जानना चाहेंगे? मेरी जो फाइनल रिजल्ट में थी वो 4th रैंक थी। 4th रैंक थी। दैट्स वंडरफुल। सो ही वाज वन ऑफ द टॉपर एंड ये बहुत ही शानदार इस बैच के हमारे कैंडिडेट हैं। एंड अब हम अगले सीक्वेंस में किसी और जो नई ज्वाइनिंग है जिसकी उनसे कुछ जानना चाहेंगे, उनका एक्सपीरियंस। फिर भी गुरप्रीत जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करते हो? हाई कोर्ट का क्या माहौल है? आपको वर्क लाइफ यहाँ की कैसी लग रही है? वर्क लाइफ तो आप जानते ही हैं, काफ़ी वर्क तो काफ़ी अच्छा वर्क है, प्रेशर है, लोड तो काफ़ी है, लेकिन हाँ एक अच्छी जॉब है, रेपुटेटेड जॉब है। आप गस्टेड ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। कुछ मोटिवेशन हमारे एस्पिरेंट्स के लिए? मोटिवेशन बस लगे रहिए, अपना लक्ष्य हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए। बहुत शानदार। और तैयारी एक दिन में नहीं होती है, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन ज़रूर करिएगा, ये हम जरूर करना चाहेंगे। एटलीस्ट एग्ज़ाम से 1 महीना पहले से अपना रिवीजन स्टार्ट करिए। जो आपने पढ़ा है नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, रिवीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर रिवीजन नहीं है तो तैयारी बेकार है। तो थैंक यू सो मच गुरप्रीत जी, बहुत अच्छा लगा। आप गुरप्रीत जी की भी 2 बेल पेंडिंग है बता रहे हैं, तो जाके अभी फाइलों में लग जाएंगे। थैंक यू सो मच गुरप्रीत। चलो, तो अब सीक्वेंस में है हमारे साथ अमित, जो 2022 बैच के लेटेस्ट एपीएस बैच के एपीएस हैं। तो अमित, आपको लगभग कितना टाइम हो गया है सर्विस में? 1 ईयर होने वाला है। 1 ईयर होने वाला। तो कैसी लग रही है नौकरी आपको? बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लग रही है। थोड़ी मोनोटोनस है बट इंटरेस्टिंग है। हाँ। कुछ नया सीखने को मिल रहा है लॉ के रिगार्डिंग भी, क्योंकि हम तो लॉ फील्ड से हैं नहीं, साइंस फील्ड से हैं, तब भी हम लॉ के रिगार्डिंग सीख रहे हैं। तो ये आपकी फर्स्ट जॉब है कि इससे पहले आप जॉब कर चुके? मेरी सेकंड जॉब है, मैं पहले पटना हाई कोर्ट में था। ओके। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तब तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा होगा आपके लिए? उतना डिफिकल्ट क्योंकि एज अ न्यू कमर थोड़ा समझने में चीज़ों को जी वो लगता है। चलिए, तो कुछ मोटिवेशन ऑडियंस को आप देना चाहेंगे? तो बस मोटिवेशन के लिए यही है कि अगर किसी को हाई कोर्ट में आना है तो बस करते रहिए मेहनत, बिल्कुल, और जल्द ही उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगर उनको हाई कोर्ट में ही आना है तो, या किसी भी फील्ड में अगर जा रहे हैं तो परसिवरेंस होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया मिस्टर अमित,
काफ़ी अच्छा लगा, आपने अपना वैल्यूएबल समय निकाल के हमें दिया, हमारे दर्शकों को थोड़ा इनलाइटमेंट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अमित। थैंक यू सर। ठीक है, तो अब एपीएस प्रिपरेशन के सीक्वेंस में अब हमारे साथ हैं मिस अर्निमा मैम। तो अब इनसे हम पूछेंगे मैम, बच्चे कहते हैं कि शॉर्ट हैंड में एक्यूरेसी नहीं आ रही है, स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए कुछ अगर आप टिप्स देना चाहेंगे तो बच्चों को। देखिए बेसिक टिप्स तो है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रांग है तो शॉर्ट हैंड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। प्लस आप डेली प्रैक्टिस करिए, अलग अलग टॉपिक उठाइए, जैसे जर्नल्स आते हैं, एडिटोरियल सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का, उससे प्रैक्टिस करिए, या सेपरेट मैगजीन्स आती हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके स्पीड बढ़ा के उसमें प्रैक्टिस करिए, किसी से भी हेल्प ले लीजिए, वोकैबुलरी अपनी स्ट्रांग करिए, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मतलब प्रैक्टिस इज द जेस्ट की प्रैक्टिस है, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस और करना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन। डेफिनेटली मैम। तो मैम आपको सर्विस में कितने टाइम हो गया? मैं 2016 से हाई कोर्ट में हूँ। 2016। तो मैम कैसा रहा जर्नी 2016 से अभी तक? जर्नी बहुत अच्छी थी, जितने भी जजेस मिले सबने बहुत हेल्प करी। कुछ जजेस ने मेरी स्पीड बढ़ाई, कुछ जजेस से मुझे वोकैबुलरी इंप्रूव हुई जी। है। इलाहाबाद में मैंने कुछ टाइम के लिए काम किया, फिर यहाँ लखनऊ मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मैम कुछ मोटिवेशन एस्पिरेंट्स को अगर आप देना चाहेंगे इस जॉब के लिए कि मोटिवेशन मेरी तरफ से यही होगा कि इस पूरी जर्नी में आप सिर्फ अपनी हेल्प कर सकते हैं, बाकी और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपके साथ आपका 99% हार्डवर्क रहेगा, 1% आपका लक रहेगा। अगर आपने हार्डवर्क में 1% की भी कमी कर दी तो कितना भी लक आपके पास होगा, आप पास नहीं हो पाओगे। दैट्स वंडरफुल मैम, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मुझे लग रहा है अभी आप थोड़ा फ्री हैं, काम तो हम मैंने जल्दी निपटा लिया अपना। ओके, थैंक यू सो मच। सो दिस वाज अर्निमा मैम। थैंक यू। चलिए, तो अब इसी सीक्वेंस में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर राज निगम। तो अब हम मिस्टर राज से पूछना चाहेंगे कि क्या इन्होंने क्या स्पेशल तैयारी की कि इन्होंने अपना सिलेक्शन इसमें बनाया, अपनी जगह बनाई। तो मिस्टर राज, कुछ अगर आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कुछ। मैंने भी बेसिकली स्टेनो शॉर्टन मैंने BHU यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करते समय ही वहाँ से एज अ पार्ट टाइम कोर्स वहाँ पे चलता था। उसी दौरान मैंने ये सीखा, और ये है कि मैंने इसको कंटिन्यू मैंने शॉर्ट हैंड को करता रहा। अदर प्रिपरेशंस भी की, लेकिन इसके साथ मैंने शॉर्ट हैंड को भी कंटिन्यू किया। और बाकी सारी क्वालिटीज़ जो अभी मेरे पहले के कलीग्स ने बताई ऑल सेम ही है। तैयारी और सिलेबस एंड अदर प्रिपरेशंस में यही था कि चूँकि मैं यहाँ के एग्ज़ाम RO और ARO का भी एग्ज़ाम की वैकेंसी रिलीज़ होती है, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन भी की थी। तो उससे आपका प्री शायद मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी हेल्प किया कि मेरा प्री इसमें अच्छा क्लियर हो गया, और मतलब मैं मेरिट में भी ऊपर था इसमें। तो दैट हेल्प मी अ लॉट। तो दिस वाज निगम। तो आप बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक की आपके 10 मंथ की जर्नी, कैसा वर्क कल्चर यहाँ का कैसा लग रहा है? जी, यहाँ का कल्चर मोर और लेस जैसे हर संस्थान में होता है, मिला जुला कल्चर रहता है इसमें, जो कि सभी को पता है। इलाहाबाद में भी हमने 1 मंथ अप्रॉक्स हमने किया, और उसके बाद हम यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। तो मिला जुला एक्सपीरियंस रहा सभी। ये आपकी फर्स्ट जॉब ही थी? जी, रेगुलर फर्स्ट जॉब है। दैट्स वंडरफुल। सो दिस वाज मिस्टर राज निगम। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। देखिए अभी जजमेंट टाइप हो रहा है। हाँ ठीक है, गेट बैक टू वर्क। थैंक यू सो मच। तो एपीएस की प्रिपरेशन के सीक्वेंस में अब हमारे साथ 2 रेस्पेक्टेड सीनियर्स हमारे जुड़े हैं, मिस्टर रविंदर सर, मिस्टर निगम सर। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि सर शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ गाइडेंस है, क्योंकि बच्चे अक्सर कंप्लेन करते हैं कि स्पीड नहीं बढ़ रही है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सर अगर आप देना चाहें तो। सबसे पहले यही कहना चाहूँगा जो तैयारी कर रहे हैं APS के लिए, तो एक ही मैटर को बार बार मिनिमम कम से कम 5 to 7 टाइम्स प्रैक्टिस करें, और वर्ड्स का खास करके प्रैक्टिस करें, लीगल वर्ड्स। ओके सर। सर निगम सर, आप कुछ शॉर्ट हैंड के लिए टिप्स देना चाहेंगे? बस सबसे बड़ा टिप यही है कि हार्ड वर्क ऑलवेज रिवार्ड्स, डेफिनेटली सर। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पर्टिकुलरली लीगल टर्मिनोलॉजी की, जी सर, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम। डेफिनेटली सर। तो सर अगर हम आपसे अगला सवाल ये कहें कि कैसा आप लोग काफ़ी समय से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो सर कैसी जर्नी रही, कैसा वर्क लाइफ है यहाँ का, कुछ बच्चों को अगर मोटिवेशन अगर आप देना चाहें तो। जर्नी तो
कुल मिलाकर बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग पब्लिक से जुड़े हुए हैं, पब्लिक के केसेस होते हैं, उनकी समस्याएँ होती हैं, तो थोड़ा वर्क प्रेशर है, लेकिन कुल मिलाकर बहुत अच्छा कह सकते हैं। डेफिनेटली सर, आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए मोटिवेशन? डेफिनेटली पास इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ है, लेकिन बस ये है वर्कलोड है यहाँ के ऊपर। और यहाँ के जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको ये मन बना करके चलना चाहिए कि इफ दे कैन डू हार्ड वर्क then they should crave for this job. डेफिनेटली सर। Otherwise, there are several other options लाइक सेंट्रल सर्विसेज, like SSC। central services, state services. यस सर। हाई कोर्ट में है तो काम तो करना ही पड़ेगा। Certainly, तो यहाँ certainly. हमारे साथ जुड़ी हैं अब रेनू मैम। तो रेनू मैम भी कुछ बच्चों को अगर मोटिवेशन देना चाहेंगे, अभी उधर भी जाएंगे मैम, आप कुछ बच्चों को कुछ मोटिवेशन दें, कैसा जॉब है ये, क्या है? जॉब तो टफ है बट लेकिन अच्छा है। अच्छा है। तो आपको प्रमोशन पोस्टेड फाइनेंशियल दिक्कतें नहीं आती हैं, हाँ बट आप इसमें आप काफ़ी ऊंची पोस्ट तक जा सकते हैं जी। अगर आप अच्छा वर्क, अच्छी परफॉर्मेंस आप देते हैं, आप ऑनरेबल जजेस के साथ काम करते हैं, आपकी एक रेप्यूटेड जगह है, तो काम तो है टफ, नो डाउट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है काफ़ी। भाई ऑनरेबल जज के साथ काम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी जी तो हाँ। है, सिंसियरिटी भी करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कि यहाँ आए एक पन्ना टाइप किया चलेगा, जी वो वर्क नहीं है, थोड़ा माइंड भी अप्लाई करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जज जजमेंट लिखना कई बार बनाने पड़ते हैं कुछ। पड़ता है, हर चीज़ है, जी। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। तो ये थी रेनू मैम। थैंक यू सो मच सर एंड मैडम, अपने वैल्यूएबल टाइम के लिए। देख रहे हैं अभी सभी लोग जजमेंट टाइप कर रहे हैं, काफ़ी काम रहता है। तो अगले सीक्वेंस में हम किसी और का इंटरव्यू लेना चाहेंगे। तो अब APS के प्रिपरेशन के सीक्वेंस में अब हमारे साथ है मिस्टर मोहित। तो मोहित जी, आपकी रैंक क्या थी इस बार? माय रैंक वाज 8। ही वॉज रैंक 8th और ये लेटेस्ट बैच के APS है। तो मोहित जी, कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी रही आपकी? ये है कि मल्टीपल रीडिंग्स करना सबसे बेहतर रहता है। जैसे मतलब आप मॉर्निंग में वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करिए, दोपहर में आप ग्रेड अप ऐप यूज़ कर सकते हैं अपना, मतलब आप फ्री टाइम प्रैक्टिस कर लिए, या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऐप को यूज़ करिए। ऐप में आप बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं करने के लिए, 1000 to 1000 क्वेश्चंस हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करते जाइए। एक टॉपिक के कम से कम 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, जैसे फॉर एग्जांपल एनालॉजी के, क्लासिफिकेशन के, वोकैबुलरी के, और आपका एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशंस के, इनके आप 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको विदिन सीक्वेंस पता चल जाएगा और इसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के लिए क्या करिए कि SSC के रिसेंट के एग्जाम का एनालिसिस करिए कि SSC क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्योंकि जैसे डांस पे क्वेश्चन पूछता है या फोक डांसेस पे, एंड आपका अवार्ड्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, एंड लैंग्वेजेस पे पूछता है। तो इस तरह क्वेश्चन की सारा एक लिस्ट बना लीजिए तो मतलब क्वेश्चन आप कैच कर पाएंगे GS में। और इसके अलावा मैथ्स के लिए तो अभी APS में तो शायद मैथ्स नहीं आती है, लेकिन इनके मैथ्स की प्रैक्टिस करें तो वो ये बार बार रिवीजन करना ही एक सॉल्यूशन है किसी भी एग्जाम को टैकल करने का। तो आप मल्टीपल रिवीजन करिए तो आपका एग्जाम सॉल्व हो जाएगा। तो मोहित जी, ये आपकी फर्स्ट जॉब है कि इससे पहले आप कहीं? नहीं, इससे पहले मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, 1-2 जॉब्स मेरी मैं पहले स्विच कर चुका हूँ इससे पहले SSC के थ्रू, बट मेरे को ये वाला ज़्यादा मतलब अपीलिंग लगी। हाईकोर्ट की जॉब और थोड़ी चैलेंजिंग भी है, तो इसलिए थोड़ा मज़ा आ रहा है काम करने में। एंड इट इज़ नोट वर्दी टू मेंशन कि इनके बड़े भैया भी यहीं पे PS हैं, थैंक यू। एंड छोटे भाई भी आ गए, तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। तो मोहित जी, कुछ अगर आप मोटिवेशन देना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को? ये कि इफ़ यू वांट टू बी इन द हाई कोर्ट तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको मतलब काम करने में मज़ा आना चाहिए, काम को एंजॉय करना आना चाहिए। अप एंड डाउन तो आपको हर तरह की जॉब में मिल जाएंगे। नाउ डेज पीपल आर लुकिंग फॉर ऐसी जॉब की इसमें बैठने को मिले। आजकल कोई भी जॉब ऐसी नहीं है, मोदी जी के टाइम पे सभी हर तरह की सीट पे आपको काम करने को मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप हाई सैलरी की सीट पे काम करो तो बहुत बेहतर है। बहुत शानदार। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम मिस्टर मोहित। तो अब सीक्वेंस में हमारे साथ आ रहे हैं मिस दिव्या। दिव्या, अगर आप कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे तो मिस्टर शशांक, ऑडियंस को कुछ अगर आप शॉर्ट हैंड के बारे में टिप्स देना चाहेंगे कि? देखिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में जो मेरा एक्सपीरियंस है, पहले आप प्रिटमेंट शॉर्ट हैंड की जो बुक होती है वो प्रॉपरली फिनिश करिए। उसके बाद मेन जो चीज़ होती है वो होती है आपकी स्पीड। तो स्पीड के लिए आप क्या करें? स्पीड के लिए आप डिक्टेशन करें, और डिक्टेशन आप रेगुलर लें जी। और अगर मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन है और उसमें रिक्वायरमेंट है 100 वर्ड्स पर मिनट, तो आप हमेशा 120 प्लस मतलब वर्ड्स पर 20 मिनट जी हमेशा
थोड़ा एक्सेस में ही डिक्टेशन है, जैसे कि थोड़ा हमेशा 120 प्लस आप डिक्टेशन लिए, ताकि जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठे तो आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की जो स्पीड है वो आपको कम लगे, तो आप इजीली उस स्पीड में लिख पाएँ। अनलेस अगर आप स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट और आप उसी वर्ड्स पर मिनट पर डिक्टेशन लेंगे, तो जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा जब वो 100 वर्ड्स पर मिनट डिक्टेट होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में नर्वसनेस होती है बिल्कुल उससे, तो उसका हाथ आपका ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है। और इन केस अगर एग्जामिनेशन में हल्की सी स्पीड तेज हुई, फ्लक्चुएशन तो वगैरह, अगर फ्लक्चुएशंस भी हुआ तो भी आप, अगर आपकी स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट है कंटिन्यूड है, तो आप उस फ्लक्चुएशंस को भी मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच शशांक, आपके सुझाव और एडवाइस ज़रूर हमारे एस्पिरेंट्स को मदद करेंगे और फाइनल सिलेक्शन में अपना नाम देखने में ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम और एंड आई विश यू ऑल द एस्पिरेंट्स बेस्ट ऑफ लक। हाँ बिल्कुल, यहाँ आएंगे शशांक, चाय पे इनवाइट करेंगे, हम लोग साथ में चाय पियेंगे। Snacks is also from me. या चलिए, थैंक यू सो मच शशांक। तो हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर श्रवण कुमार, जो मेरे बैच के APS हैं। एंड काम अगर है थोड़ा काम रहता है, जाहिर सी बात है कि आप गेजेटेड पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो जिम्मेदारी भी उसी के बिल्कुल हिसाब से होगा, तो जो है सो काम उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हम नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लीगल सेक्टर में मतलब अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। दूसरी बात है कि हमें लीगल सेक्टर में कम से कम वो लीगल वाले फील्ड में हमें बहुत सी जानकारी मिल जाती है, जो कि और कहीं संभव नहीं है। काम जहाँ होगा वहीं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यही है। तो काम बहुत लोगों का ये रहता है, जो एक्सपीरियंस हैं उन लोग को लगता है कि हाँ भाई हाईकोर्ट में काम बहुत है। हम भी ऐसा सोचते थे कि भाई हाईकोर्ट में काम बहुत होगा, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ग्रेड के हिसाब से हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, जैसा कि और जो गैजेटेड पोस्ट हैं PCS वगैरह में आई हैं, जो UPSC वगैरह में जो हम लोग को जो पोस्ट मिलता है उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी बहुत कम है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच श्रवण, मिस्टर श्रवण। ये थे श्रवण जी। अब सीक्वेंस में अब हम किसी और से भी पूछना चाहेंगे कि जिससे कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू सो मच श्रवण फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो अब हमारे साथ आ रहे हैं मिस्टर लोकेश कुमार, जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट सेक्रेटरी हैं और बहुत चंचल सेक्रेटरी हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे कि सर, आप कुछ अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि कैसे इस जॉब में आए, कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही, कैसे हाउ टू बीट द क्राउड एंड बी सेलेक्टेड। The only funda is not to give up when you feel agitated during examination, because High Court examination can agitate you. सो अब सीक्वेंस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर अर्पण, जो अभी लेटेस्ट बैच के APS है। तो अगर आप कुछ बताना चाहें मिस्टर अर्पण, जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं APS जो बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ सजेशंस या कुछ एडवाइस अगर आप देना चाहो। हाँ, सजेशन यही है, आप सर की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी सर की स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। वैसे अभी मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई नहीं है कोई, बट दूसरे लोगों ने बताई। कुछ वीडियोज़ है सर ने जो भी बताया है वही सब स्ट्रेटेजी फॉलो तो करके ये अगर आप बताना चाहें आपको कैसा लगा इस पूरे 10 महीने शायद हो गए आपको सर्विस ज्वाइन किए, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस टाइम? एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। जुडिशियरी में हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है यूपी का, और लॉर्डशिप के साथ काम करने का, जैसा आपके साथ काम करने का मौका मिला। चलिए, बहुत बढ़िया, बेस्ट विशेस मिस्टर, और थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो आज ड्यूटी कहाँ लगी थी आपकी? ड्यूटी है परमानेंट अटैच। अच्छा, अटैच हो गया? राजीव सिंह साहब। ओह दैट्स वंडरफुल। वहाँ से कौन लिया अटैच हुआ? अमित सर थी। अच्छा, हाँ, उनके तो कॉन्ग्रेचुलेसन अगेन। और आज ये हमारा पूल सेक्शन है, जहाँ पे जो सेक्रेटरीज अटैच नहीं होते हैं और उनका टाइपिंग स्पेस होता है यहाँ पे। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर जॉब, अटैचमेंट। ये अटैचमेंट तो होता रहता है। सो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो आई होप आप सबको ये जो मैंने इंटरव्यू लिया, बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू इंटरव्यू था, इसलिए बहुत ही एब्रप्टली हुआ ये इंटरव्यू, बट आई होप कुछ तो बेनिफिट मिलेगा एस्पिरेंट्स को। एंड मैं भी अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करूँगा एक सेपरेट वीडियो में, और क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही,
इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। बेसिकली मैं फोकस करना चाहूँगा इंग्लिश में, क्योंकि वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा, इन लोगों को उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए, क्योंकि वो भी काफ़ी डिमांड कर रहे हैं बच्चे। तो होप यू गाइज लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।